السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے. جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. سوال: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کلمہ استغفار کو کہا جاتا ہے. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا. سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 تجارتی سفر فرمائے. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتے تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز مسجد مولا میں پڑھا کرتے تھے. سوال: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جواب: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک جناب قرطبہ نے لکھا اور امیر معاویہ کے دور میں لکھا. سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا. سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے. سوال: حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ 7 کا ہے.
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟
जवाब: फरिश्ते सातवें आसमान पर रहते हैं। सवाल: किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब: सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोए। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब: लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल: सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब: हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल: अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब: अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल: किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब: सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल: ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल: ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए?
जवाब: ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहसीन नाम लंबा है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब: कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल: औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब: बेकाबू और बेहया ज़बान है जो शौहर की जान भी ले सकती है। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब: बारात। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: वजू के अज़ा को कितनी बार धोना सख्त मना है? जवाब:
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए एक एक मरतबा आज़ाद हुए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तरमिज़ी और इब्ने माजा ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और दो दो मरतबा आज़ाद हुए। उसे अहमद और बुखारी ने रवायत किया है। जवाब: हज़रत उमरू अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन मरतबा वज़ू के आज़ाद होकर दिखाए और फरमाया, वज़ू का तरीका यह है, जिसने इससे ज़्यादा मरतबा धो इसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। इसे अहमद, नसाई और इब्ने माजा ने रवायत किया है। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल: किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब: जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल: अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: हदीस के मुताबिक खाना खाने के फौरन बाद सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा सख्त हो जाता है? जवाब: दिल है जो सख्त हो जाता है। सवाल: वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल: काबा में कौन सी दो चीज़ें जन्नत के याकूत में से हैं? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो हमेशा ज़िंदा रहता है?
जवाब: जेली फिश है जो हमेशा जिंदा रहती है। सवाल: किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? जवाब: जुम्मे के खुतबे के दौरान नेकी की बात करना हराम है। सवाल: कौन सी हराम चीज पीना बिल्कुल जायज है? जवाब: गुस्सा हराम है, बिल्कुल पीना जायज है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।